से आप उपस्थित हो चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा है। आइए चलें प्रश्न की शुरुआत कर देते हैं। और सर आवाज़ कम है। ओके ओके, आवाज़ कम है, तो आवाज़ को कैसे बढ़ाएं? अभी अभी क्या ठीक है आवाज़? बताएं। मैं धीरे धीरे बोल रहा था, इसीलिए आवाज़ कम हो रहा था। आवाज़ तो वैसे इट्स वेरी गुड। अभी हमको लगता है कि हुआ होगा, और ब्राइटनेस भी हमने कर दिया है, तो अभी आवाज़ बिल्कुल ठीक हो चुका होगा। आइए चले प्रश्नों की ओर। और आज का ये पहला प्रश्न है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पिनाका, PINA। पिनाका इज ए मल्टीपल। नहीं सर, आवाज़ कम है, तो कैसे मैं ठीक करूँ? आवाज़ कम है, आवाज़ कम है, तो साउंड इज मैक्सिमम। निशा गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग निशा। तो आवाज़ तो ठीक ही होना चाहिए, आई फील। दो दी इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल, तो हो सकता है उसके चलते आवाज़ में कमी आ रही हो, बट एवरीथिंग इज क्वाइट वेल। तो आवाज़ में यदि कोई दिक्कत है तो बताएंगे। तो ठीक है सर, वेरी गुड, थैंक यू। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पिनाका। So number one, Pinaka is a multi-barrel rocket launcher, MBRL, developed jointly by India and USA. ये आवाज नहीं ठीक है। Okay, thank you. It was first used during Kargil War, where it successfully neutralized Pakistan army positions on the mountain tops. Which of the above statements are correct? So, dear aspirants, अब यहाँ से A1 1 B, B2 1 B, C both 1 and 2, and D neither 1 nor 2. तो अब ये पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर तो है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, और ये आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट लेबोरेटरी DRDO के द्वारा डिजाइन किया गया। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला जो इसमें स्टेटमेंट है, jointly by India and USA, no, it was designed by, okay, Armament Research and Development Establishment, a laboratory of DRDO। DRDO के द्वारा डिजाइन किया गया था पिनाका। तो दूसरा स्टेटमेंट इसका, it was first used during Kargil war, where it successfully neutralized Pakistan army position on the mountain top. This statement is correct. First statement is not correct, dear students. So our answer should be B, that is 2-1. दूसरा कथन इसमें बिल्कुल सही है, because it was first used during Kargil war, where it successfully neutralized Pakistan army positions on the mountain tops. It delivered lethal and responsive fire against a variety of area targets, such as exposed enemy troops, armored and soft-skin vehicles, communication centers, air terminal complexes, and fuel and ammunition dumps. तो इस तरह से ये इसका आंसर हम लोगों ने क्या बनाया? बी। बी इज द आंसर। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से प्रश्नों का उत्तर यदि आप देते हैं तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। हम देख रहे हैं कि कुछ गतिविधि के कारण, यस डियर स्टूडेंट्स, yes, it is absolutely correct, I think. You
Now everything is okay, quite okay, because sufficient light, sound. So let us move to the question number 2 of the day. It consists of a series of locks that raise and lower the water level to facilitate the passage of ships through the continental divide. Which of the above statement is correct? तो ये पनामा कैनेल के संबंध में है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पनामा कैनाल. और क्या है स्टेटमेंट, फिर से एक बार सुनिए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. नंबर 1, it is an artificial waterway that connects the Red Sea and Mediterranean Sea. The second statement, it consists of a series of locks and raise and lower the water level to facilitate the passage of ships through the continental divide. Which of the above statement is correct? अब आपको बताना है A1 only, B2 only, C both 1 and 2. पनामा कैनेल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे. इसको आपको याद करना होगा. तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है. कनेक्ट्स रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी. तो ये इसका कथन नॉट करेक्ट. ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट नहीं करता है. ये किसको कनेक्ट करता है? अटलांटिक ओशन विथ द पैसिफिक ओशन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. It is an artificial waterway that connects the Red Sea and Mediterranean Sea. No. Panama, okay, canal connects the Atlantic Ocean with Pacific Ocean. The canal cuts across the Isthmus of Panama and is a conduit for maritime trade. It was cut through one of the narrowest saddles of Isthmus that joins North and South America. It is one of the two most strategic artificial waterways in the world, the other being Suez Canal. Hence, statement 1 is not correct. Dear aspirants. और दूसरा statement क्या है? It is approximately 80 kilometers long. It consists of a series of locks that raise the lower, okay, that raise and lower the water level to facilitate the passage of ships through the continental divide. France began work on canal in 1881. Okay, 1881. But financial troubles and disease made the initiative fail. The United States took over the project on May 4, 1904 and opened the canal on August 15, 1914, and then managed the waterway until 1919. On December 31st, 1999, Panama took over full operation, administration and maintenance of the canal in compliance with the treaty negotiated with the United States. So, statement 2 is correct. तो पनामा कैनाल के बारे में आपने ये प्रश्न देखा और इसका भी आपने निश्चित रूप से इसे आपने नोट किया होगा. Dear aspirants, the next question is PARAMYROTHECIUM. What is this? Paramyothecium indica. Paramyothecium indica, recently seen in the news, is related to which of the following? A new species of butterfly, तितलियों का एक नया प्रजाति. B, a new species of flower. C, a new species of frog. And D, a new species of fungus. Dear aspirants, आपने यदि सुना होगा तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं. What does it mean? Paramyothecium indica. Dear aspirants, it's a new species of fungus. So D is the answer. Scientists recently discovered a new species of fungus in Kerala. That's why it is indica. Okay? Paramyothecium indica. It is a new species of phytophogenic fungus. Phytophogens are parasites surviving on
a plant host. Most of Permathecium are phytopathogens. They are responsible for serious plant diseases which might negatively affect crop productivity. So option A is correct. Okay, D is correct. So dear aspirants, now let us move. Consider the following statement regarding Sikh Gurus. Sikh Gurus, dear aspirants. और यहाँ पर हम देखेंगे कि Number 1, Guru Angad Dev compiled the writing of Nanak Dev in Guru Granth Sahib in Gurumukhi script. Second, Guru Arjun Dev founded the city of Amritsar. Third, Guru Gobind Singh Sahib created the Khalsa in 1699, and Guru Ram Das completed construction of Sri Darbar Sahib, also known as Golden Temple in Amritsar. तो ये चारों का चारों स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है डियर एस्पिरेंट्स. नंबर 1, गुरु अंगद देव कंपाइल्ड द राइटिंग्स ऑफ नानक देव इन गुरु ग्रंथ साहिब इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट. गुरु अर्जुन देव फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर and Guru Gobind Singh Sahib created Khalsa in 1699, and Guru Ram Das completed construction of Sri Darbar Sahib, also known as Golden Temple in Amritsar. Dear aspirants, how many of the statements are correct? अब आपको बताना है कि इसमें कितने तथ्य इसमें सही है. So out of these 4 statements, 2 statements are correct. Dear aspirants, second statement is not correct. Guru Arjun Dev founded the city of Amritsar. This statement is not correct because Guru Ram Das, 4th of the 10th Guru, he founded the city of Amritsar. तो इसको आप जरूर से लिखेंगे. Guru Ram Das, he founded the city of Amritsar. So second statement is not correct, and 4th statement is also not correct. Dear aspirants, चूंकि यहाँ पे गुरु रामदास कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ श्री दरबार साहिब नोन एज गोल्डन टेम्पल, नो. ओके, इसमें क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गुरु अर्जुन देव कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ दरबार साहिब, also known as गोल्डन टेम्पल. तो ये 2 इनकरेक्ट था, तो हमने अब चारों को करेक्ट कर लिया. 1 and 3 बिल्कुल सही है. गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा का सृजन किया था और अंगद देव ने कंपाइल किया था नानक देव, दैट इज गुरु ग्रंथ साहिब गुरुमुखी स्क्रिप्ट यानी लिपि. डियर एस्पिरेंट्स, इस तरह से ये भी प्रश्न बिल्कुल निकल गया. आइए देखें एमपी लैड, ओके, लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम है. विथ रेफरेंस टू एमपी लैड, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लैड का मतलब लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 3 स्टेटमेंट क्या है. पहला, आइए देखें. इट्स एम इज टू प्रोवाइड फंड्स टू एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, टू एक्सिक्यूट certain development projects to meet the urgent need of their constituent, उनके constituency में, यानी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो विकास के कदाचित कतिपय कार्य हैं उनके कार्यान्वयन के लिए ये एमपी लैड है. पहला कथन तो यही है. दूसरा, द फंड्स रिलीज्ड अंडर स्कीम आर नॉन लैप्सेबल, मतलब ये जो राशि है, जो निधि है, वो व्यपगत होने योग्य नहीं है, मतलब वो लैप्स नहीं होगी. कैसे? बहुत सारी राशियां वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात लैप्स हो जाती हैं, यानी वो सरकार को लौट जाती है, लेकिन ये लैप्सेबल नहीं है. तीसरा, रिसेंटली ई सखी एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. ओके, तो टू ट्रैक द फंड फ्लो अंडर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपी लैड्स, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. अब इसको बताना है कि इनमें से
कितने स्टेटमेंट कथन सही है? डियर एस्पिरेंट्स, सी इज द आंसर। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसका उत्तर क्या है? सी। कहने का मतलब कि एमपी लैड ये काफी इंपॉर्टेंट है, और आपने देखा होगा यदि आपने PYQ लगाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हल किया है डियर एस्पिरेंट्स, तो आपने निश्चित रूप से देखा होगा एमपी लैड पे प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे तीनों के तीनों कथन सही है विथ रेफरेंस टू एमपी लैड स्कीम। इसका उद्देश्य क्या है? एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फंड्स टू एमपी। जो सांसद हैं, अब ये राज्यसभा लोकसभा दोनों सांसद हैं। यहाँ पे ये भी समझिएगा, ऐसा नहीं है कि सांसद केवल लोकसभा के उन्हीं को एमपी लैड में राशि उपलब्ध होती है डियर एस्पिरेंट्स, और इनको डेवलपमेंट की योजनाओं के लिए ये राशि उपलब्ध होती है जो नॉन लैप्सेबल है, मतलब वो लैप्स नहीं होगी। बहुत सारी योजनाओं की राशियां वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात या पूर्व में ही उनको सरेंडर कर देना होता है, आपने देखा होगा, लेकिन ये लैप्सेबल नहीं है। और ई सखी ये क्या है? एक एप्लीकेशन है जो स्टैटिस्टिक्स है, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, ओके, योजना कार्यान्वयन के द्वारा ट्रैक करने के लिए ये एप्लीकेशन बनाया गया है। तो ये तीनों के तीनों कथन सही है डियर एस्पिरेंट्स। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहां पर ई सखी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे भी आप अवगत हो चुके डियर एस्पिरेंट्स। इसी तरह के प्रश्नों पर हम दृष्टिपात कराते हैं और लगातार ऐसे ऐसे प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं जिनसे आपका क्षमता वर्धन हो। डियर एस्पिरेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। When it was nationalized in 1949, its headquarter was in Calcutta. क्या ये सही है कि जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, तो इसका मुख्यालय कोलकाता में था, और ये कब की घटना है? 1949। दूसरा, इट रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या ये भी है अंतरराष्ट्रीय ओके इंटरनेशनल मॉनेटरी मौद्रिक निधि के समक्ष ये भारत सरकार को प्रतिनिधित्व करता है। इट प्लेज एन इनडायरेक्ट रोल इन डिटरमाइनिंग द एक्सचेंज रेट थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? A only one, B only two, C all three, and D none. Dear aspirants, the first statement is not correct. When it was nationalized in 1949, its headquarters was in कोलकाता। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि at that time its headquarters was in Mumbai. Reserve Bank of India was established on April 1st, 1935. It was nationalized on January. Paulus Tirki, good evening. Very good evening, Paulus Tirki ji. And RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ, 1949, और उस समय इसका मुख्यालय मुंबई में था, कोलकाता में नहीं। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बाकी दो जो स्टेटमेंट है, इट रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF में ये भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, और ये अप्रत्यक्ष भूमिका निभाता है। इट प्लेज एन इनडायरेक्ट रोल इन डिटरमाइनिंग द एक्सचेंज रेट थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। ये दो कथन सही है। सो आवर आंसर शुड बी 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इस प्रकार से डियर एस्पिरेंट्स, ऐसे प्रश्नों को आपने देखा, और अगला जो प्रश्न है वो परचेजिंग पावर पैरिटी PPP से संबंधित है।
मेरा पूरा विश्वास है जो प्रश्न मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कम से कम उसका टाइटल अपने नोटबुक में आप लिखते जा रहे होंगे ताकि आगे इसका रिवीजन आप कर सकें। डियर एस्पिरेंट्स, तो अगले प्रश्न को भी ध्यान से सुने। इन द कंटेक्स्ट ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, इट इज द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री, ध्यान से सुनिएगा, इट इज द रेट at which the currency of one country would have to be converted into that of another country to buy the same amount of goods and services in each country. दूसरा, the PPP exchange rate is calculated by IMF. Which of the statement given above is are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, and D, neither 1 nor 2. Dear aspirants, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि पीपीपी जो रेट है, इट इज द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री वुड हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू दैट ऑफ अनदर कंट्री टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ईच कंट्री। ये तो बिल्कुल सही। लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है कि पीपीपी एक्सचेंज रेट इज कैलकुलेटेड बाय आईएमएफ, दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों नहीं है? वर्ल्ड बैंक कैलकुलेट्स, ध्यान से सुनिएगा और लिख भी लीजिए। क्या मैंने बोला? वर्ल्ड बैंक कैलकुलेट्स द पीपीपी एक्सचेंज रेट, हेंस स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। इट रिफ्लेक्ट्स the underlying exchange rate between the two different countries for buying goods and services and a more accurate reflection of actual living standards in countries. Dear aspirants, let us move to the next question. और यहाँ पे हम एक सवाल जीडीपी से करेंगे। ऑफलाइन क्लास में तो हमने जीडीपी, नेशनल इनकम, ये पूरा का पूरा चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 पढ़ा दिया। पांचवा चैप्टर चल रहा है, छठा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। डियर एस्पिरेंट्स, आइए देखें स्टेटमेंट 1। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी मेजर्स टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विदिन ए कंट्री ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। स्टेटमेंट 2, जीडीपी इज कैलकुलेटेड यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, income method and production method. Regarding the above statement, which one of the following is correct? So this type of question, this pattern of asking question, okay, you may see or you might have observed during previous year's question. Okay, जो 28 मई की परीक्षा हुई थी प्रीलिम्स की, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्या है? ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज नॉट करेक्ट। एंड डी, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड 2 इज करेक्ट। डियर एस्पिरेंट्स, अब इसका आंसर क्या है कि दोनों तो सही है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट इज ओके नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। ऐसा क्यों? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज आल्सो नोन एज जीडीपी, इज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर दैट मेजर्स द साइज एंड ग्रोथ ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमी. It is defined as the total monetary value of all final goods and services produced within a country borders in a given period, usually a year. Hence, statement 1 is correct. There are 3 main methods for calculating GDP. Expenditure method. In this method, GDP is divided into 4 main segments: consumer expenditure, investment, government expenditure, and net expense.
then the sum of these four segments is taken as GDP. Dear aspirants, in income method, GDP is defined as the sum of all income generated in the economy. This includes wages, capital income, profits, and government income. Okay, are you getting my point? Now, production method. This method, okay, in this method, GDP is defined as the total value of all goods and services produced in the economy. But it excludes the value of intermediate goods and services. Okay, now statement 2 is correct, but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Okay, because statement 1 provides the definition of GDP, while statement 2 gives 3 methods of calculating GDP. So this way, dear aspirants, our answer should be B. I am very much hopeful that you have understood और आपने इसे लिखा भी होगा, अवश्य लिखा होगा. Have you written it? चैट बॉक्स में बताइए आपने इसे समझा और लिख भी लिया. अगर समझा और लिख भी लिया तो ये बहुत अच्छी बात है. डियर एस्पिरेंट्स, अगला जो प्रश्न है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर है. इस प्रश्न को भी ध्यान से सुनना होगा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यस लीसा, वेरी गुड, थैंक यू. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोर इन्फ्लेशन. आप सोच रहे होंगे सरकार बाल छोटा छोटा क्यों हो गया. डियर एस्पिरेंट्स, 12 दिसंबर को मेरी माता जी का वार्षिक श्राद्ध, तो उसी लिए मुंडन हुआ था, इसीलिए बाल छोटा छोटा है. तो अब धीरे धीरे बढ़ जाएगा, साइड से भी आ जाएगा, पूरा का पूरा तो ठीक लगेगा. आइए चले. और वो कंप्यूटर रूम में जब मैं क्लास करता हूँ तो कैप पहनता हूँ, बट दिस इज नॉट अवेलेबल हियर, यहाँ पे इस स्थान पे. तो आइए देखें, इस प्रश्न पे गौर करें. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोर इन्फ्लेशन. ये काफी इंपॉर्टेंट है. कोर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो आप जानते ही हैं, महंगाई. Number 1, it does not include volatile components of consumer price index such as food and energy prices. और दूसरा, it is considered a better measure of underlying inflation trends than the overall CPI. Which of the statement given above is correct? Dear aspirants, इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही. Both the statements are correct. Core inflation actually excludes volatile components of CPI. अब volatile component CPI का क्या होता है? तो food and energy prices. Okay? These components can fluctuate significantly due to factors such as weather, crop yields, and geopolitical events, making them less reliable indicators of long-term trends. Okay, so dear aspirants, first statement is correct and second statement is also correct because it provides a clear picture of the underlying inflationary pressures in the economy. It is less affected by temporary fluctuations in prices and better reflects the impact of factors such as monetary policy and aggregate demand. This makes it better measure for central banks and policy makers when assessing the overall health of the economy and making decisions about interest rates and the other economic policies. तो इस प्रकार से आपने निश्चित रूप से समझ लिया होगा. और एक आखिर में छोटा सा सवाल लेकर के हम लोग क्लास समाप्त करेंगे. What was the primary objective of नचिकेत मोर कमिटी? नचिकेत, NACHIKET, नचिकेत मोर कमिटी का ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? ABCD type of question you have to find out only one answer.
कोई ABCD में एक. To study the feasibility of cashless economy in India. B. Promoting financial inclusion in India. This is the correct answer. अब C और D पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लिख लें. नचिकेत मोर कमेटी का उद्देश्य था फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, वित्तीय समावेशन. और वित्तीय समावेशन क्या है, कल के क्लास में आपने सुना है, उसे रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिएगा. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नचिकेत मोर कमेटी वाज टू इंक्रीज financial inclusion in India. In its report, the committee had recommended the establishment of payment banks in India. याद रखिएगा, पेमेंट बैंक्स इन इंडिया. तो क्या पेमेंट बैंक है? जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, ओके, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजन. Okay, payment banks are designed to enhance financial inclusion by facilitating services to a small savings account, low income household, small business, migrant labor, other unorganized sector entities, and other individuals by allowing high volume, low value transactions. So, dear aspirants, this is all about today's class. We have finished 10 important questions today, most of them related to economy. इसी तरह से इकोनॉमी पे कल फिर प्रश्न आएंगे ताकि आपकी समझदारी बढ़े, कंसेप्ट क्लियर हो, अंडरस्टैंडिंग. लेकिन जहां कहीं भी कोई कठिनाई है, डियर एस्पिरेंट्स, यू आर फ्री टू आस्क, राइट योर क्वेरीज, डाउट्स इन चैट बॉक्स. आई एम हियर टू रिस्पॉन्ड. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी. आधे घंटे का सफर यहीं पे समाप्त हुआ. आपको शुभकामना देना है, आप इसी तरह से नियमित रूप से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें. परिश्रम का फल मीठा होना ही है. डियर एस्पिरेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी. लेट मी से गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू.